روگے عاشق۔ اچانک کمرے میں ایک ہیولا نمودار ہوا، اس کے لب ہلے اور آواز سنائی تھی، عاشقی مرتی نہیں، میرا جسم تو فنا ہو گیا مگر میری عاشقی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے اور رہے گی، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا۔ ایک عاشق کی حیرتناک روداد۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا، اگرچہ دل کرچی کرچی ہو کر بکھر چکا تھا مگر محبوب کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت اس میں نہ تھی۔ آنکھوں میں آنسو امڑ آنے کے لیے بےتاب تھے مگر وہ ان پر بند باندھنا جانتا تھا۔ آخر عاشقی نے یہی تو سکھایا تھا، اپنے جذبات کو سفید چادر میں لپیٹ کر خود کو دوسروں کے سامنے ہنستے ہوئے پیش کرنا، لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ اپنے درد کو دوسروں پر عیان نہ کرنا۔ آئندہ میری نگاہوں کے سامنے آنے کی جرت بھی کی تو میں بھول جاؤں گی کہ میں کبھی تمہاری دوست ہوا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتہا کی شفافیت اتر آئی تھی، دیکھنے والے تماش بین تھے اور آگے بڑھ کر کسی کے درد کی دوا کرنے سے قاصر دکھائی دیتے تھے۔ وہ گردن کو ہلکا سا خم دیے بس اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہاتھوں میں ایک عدد گٹار تھا جسے پکڑنے کی سکت اگرچہ ختم ہو چکی تھی مگر وہ اس کو تھامے ہوئے تھا۔ اب جا سکتے ہو یہاں سے، اس نے گہری سر لگائی۔ اپنی صفائی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آخر جرم ہی کیا کیا تھا اس نے؟ فقط اظہار محبت۔ کیا کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرنا جرم ہے؟ کیا محبوب کو اپنی عاشقی کی بات بتانا ناقابل تلافی درد ہے؟ اس کی پلکیں بھیگ چکی تھیں، قریب تھا کہ ابر نیسا موتیوں کی مانند زمین بوس ہو جاتے۔ وہ پیچھے کی جانب کھسکا، قدم ڈگمگائے مگر وہ سنبھل گیا، لب اب بھی نہ ہلے تھے۔ دل میں کسی کنول کے مانند سمانے والا چہرہ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا اور خاموشی سے کھسکتا نظر آ رہا تھا۔ کسی ایک کی نہ سننے والا اپنے دل کی سن کر آج در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار تھا۔ سمیر راجپوت، ہزاروں دلوں کی دھڑکن، سنگیت کی دنیا کا نامور آدمی، اپنی کلی کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ اپنا مقام، اپنا مرتبہ سب کچھ بھول گیا۔ جہاں بھر کی نعمتیں ایک طرف اور محبوب کا ساتھ ایک طرف، وہ سائرہ کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا مگر اس کی آنکھوں میں سمیر ایک پل کے لیے بھی نہیں جچتا تھا۔ اس کے ساتھ کام کرنا اس کی مجبوری تھی مگر آج جب سمیر نے اپنے دل کا حال سائرہ کے سامنے رکھا تو وہ اسے قطعاً برداشت نہ کر سکی اور ایک تماچا اس کے رخسار پر دے مارا تھا۔ عاشقی کا مجسمہ سمیر راجپوت ہونقوں کی طرح دیکھتا رہا۔ دل کے ٹوٹنے کے بعد کے منظر کی وہ اپنے کانوں میں عکاسی اگرچہ کرتا تھا مگر درد کی شدت شاید وہ جانتا ہی نہ تھا، اور آج وہ اس ذائقے سے بھی آشنا ہو چکا تھا۔ کتنا میٹھا سا ہے درد جو تم نے دیا ہے، مرہم نہ کوئی دوا ہے، مرثے عشق ایسا گناہ ہے۔ اپنے ہی گانے کے الفاظ آج اسے سمجھ آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہی لمحوں کے لیے اس نے وہ الفاظ کہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے پلٹتا جا رہا تھا کہ یکدم اس کی آواز نے ایک بار پھر ان قدموں کو روک دیا تھا۔ ٹھہرو۔ وہ امید کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ ایک وقار کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ یہ لو اپنا تحفہ۔ وہ پھول جو اس نے بڑی ہی چاہ سے اس کے لیے خریدے تھے اس کے منہ پر مار دیے گئے۔ پنکھڑیاں ہوا میں بکھرتی چلی گئیں، ہر ٹہنی جدا ہو گئی، خوشبو سے فضا کو معطر کیا گیا تھا مگر درد پر مرہم لگانے کے بجائے جلدی پر نمک کا کام کیا۔ اب آنکھوں کو ضبط میں رکھنا محال تھا، ایک شبنم سا قطرہ بہہ ہی نکلا تھا۔ گرفتار جو ہوا محبت میں
आशिकी उसकी सजा है। मोहब्बत को धुतकारे जाने के बाद संगीत की दुनिया का ये सितारा जैसे ढल ही चुका था। तमाम कंसर्ट उसने मुलतवी कर दिए और तमाम एल्बम को नजरे आतिश कर दिया। अपने आप को चार दीवारी में कैद करके बस अपनी आशिकी को याद करता। घर वाले और दोस्त अहबाब उसकी हालत पे अगरचे फिक्रमंद थे, मगर वक्त की मौजों पर छोड़कर अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। दिल टूटा है अभी, कुछ दिनों बाद देखना पहले जैसा हो जाएगा। तकरीबन सबकी बातों का यही मफहूम निकलता था, मगर कोई क्या जाने कि आशिकी का रोग क्या है। बंद कमरे में जहां उसने जगह जगह सायरा की तस्वीर अपने पोस्टर के साथ लगाई हुई थी, उन्हें देखता जाता और गिटार के तारों से दर्द भरा सुर बिखेरता। आज भी वो अपनी आशिकी के किस्से खामोश दरो दीवार को सुना रहा था कि उसके दिल ने किसी अनहोनी की खबर दी थी। रात का पहला पहर था, बादलों से सजा आसमान किसी तूफान का पेशखीमा था। खिड़कियों के दोनों दरवाजे जोरदार आवाज के साथ खुद ब खुद खुलते और बंद होते जा रहे थे। उसने हसरत के साथ बाहर की तरफ देखा और गिटार को बेड पर रखकर उस जानिब मुड़ा। वो सफेद जीन्स और उसी रंग की हाई नेक में मलबूस था। चांद सी रंगत पर यह लिबास खूब जच रहा था। सायरा, तुम ठीक तो हो? उसने आसमान की तरफ देखते हुए खुद कलामी की थी। जवाब गहरी खामोशी से दिया गया था। दिल की बेचैनी बढ़ने लगी। बादलों का शोर और रिमझिम उसके सुकून को तबाह और बर्बाद कर रही थी। वो मुट्ठियां भींचे कभी दरवाजे की तरफ बढ़ता तो कभी बालकोनी की तरफ। उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सायरा किसी मुसीबत में है? उसने अपने गाते हुए पोस्टर की जानिब देखा था, जहां उसके ऐन पीछे सायरा खड़ी थी। वो लम्हे भी क्या लम्हे थे। महबूब मोहब्बत से आशना तो ना था, मगर साथ तो था। दर्द एक बार फिर उभरने लगा था। मुझे फोन करके पूछना चाहिए। अपनी इतनी जिल्लत बर्दाश्त करने के बावजूद वो उसके बारे में फिक्रमंद था। फोन मिलाया तो वो स्विच ऑफ निकला। मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है? फिक्र पहले से ज्यादा बढ़ गई। अब वो वहां नहीं ठहर सकता था। जिस हाल में था उसी हाल में अपने महबूब की खातिर चल दिया। न मौसम की फिक्र थी और न रात के इस पहर की खबर। समीर, उसकी मॉम ने उसको गैराज की तरफ जाते हुए देखा तो पुकारना चाहा, मगर वो उनके अल्फाज क्यों कर सुन सकता था। दिल में बस महबूब समाया हुआ था। बारिश खूब बरस रही थी। बादलों की गरज ने फजा में मौजूद हर आवाज को दबा दिया था। ऐसे में वो तेज ड्राइव करते हुए कार को अजनबी मंजिल की तरफ गामजन किए हुए था। सुनसान सड़क जिसके दोनों अतराफ बोसीदा से तरफ थे, एक वहशत का मंजर पेश कर रहे थे। आंखों में सायरा का चेहरा समोए हुए वो कई बार मोड़ काटते हुए हादसे से बचा था। इस बार भी जब वो दाएं जानिब मुड़ा तो एकदम ब्रेक लगाई। आंखों में एक कसक ने जन्म लिया। सामने सायरा की कार थी जो दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वो बिना सोचे समझे बाहर आया और तेजी के साथ सायरा की कार की तरफ बढ़ा, जो अंदर से बिल्कुल खाली थी। कोई वहां मौजूद ना था। 2 लम्हों ही में वो मुकम्मल तौर पर भीग चुका था, मगर उसे अपने आप के बजाय सायरा की फिक्र थी। सायरा इस वीराने में कार छोड़कर कहां जा सकती है? उसने पेशानी से बालों को पीछे करते हुए सोचा था। तभी बारिश की रिमझिम में उसे पायल की झनकार सुनाई दी। कोई तेजी के साथ भाग रहा था। कदमों की चाप भी उस झनकार में शामिल हो रही थी। वो हैरत से पलटा। ये आवाजें? उसने सोचा और सामने की तरफ भागा। आवाज करीब से करीब तर होती जा रही थी। बचाओ, बचाओ! अब मध्यम सी आवाज भी सुनाई दी थी। जरा गौर से सुना गया तो वो सायरा की आवाज थी। उसके जिस्म में जैसे एक करंट दौड़ गया था। भागते हुए उस आवाज का ताकुब करने लगा।
वहां सायरा अकेली भाग रही थी, दुल्हन के लिबास में। उसके पीछे कई गुंडे थे जो उसका ताक़ुब करने की कोशिश में थे। समीर ने यह देखा तो उन गुंडों के सामने आ खड़ा हुआ। छोड़ दो इसका पीछा करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उसने धमकी दी थी। शनासा आवाज समाज से टकराई तो वो पलटी। समीर को वहां देखकर वो खासा चौंकी थी, मगर उम्मीद की किरण नजर आने पर उसकी जान में जान आई थी। मेहंदी के फंक्शन के लिए वो ब्यूटी पार्लर से अकेले घर की तरफ जा रही थी कि खराब मौसम के बायस इंजन में पानी भर आया। ऐसे में गुंडे वहां आ मौजूद हुए और अपनी जान बचाने की खातिर वो बस भागती जा रही थी। अब तू बताएगा हमें कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। वो 3 थे और ये अकेला। सबने मिलकर उस पर वार किए थे। सायरा ने आगे बढ़कर उन्हें रोकना चाहा, मगर इतने में वहां वलीद आ चुका था। वो उसी की तलाश में आया था। जब फोन बार बार स्विच ऑफ रहा तो उसे भी फिक्र हुई थी। तभी वो उसे ढूंढने आ निकला था। वलीद, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो देखो समीर अकेले उन गुंडों से लड़ रहा है, प्लीज उसकी मदद करो, वो मार देंगे उसे। सायरा ने दर्द भरे लहजे में वलीद से मदद की दरखास्त की, मगर उसने नफी में गर्दन हिला दी। पागल हो गई हो क्या? वो बदमाश हैं, चलो यहां से। किसी के मामले में बिला वजह नहीं पड़ना चाहिए। वो उसका हाथ खींचते हुए वहां से ले गया और अपनी कार में बिठाया। वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। एक कपकपी उसके जिस्म पर तारी थी, मगर निगाहें बरजस्ता बार बार पलट कर देख रही थीं जहां समीर बुरी तरह घायल हो चुका था। बरसती बारिश में खून भी शामिल हो चुका था। वो उनके सामने बुरी तरह हार चुका था। सर पर लगी चोट के सबब खून बह रहा था। आंखें भी बोझल महसूस हो रही थीं। वो घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा था। गर्दन को हल्का सा उठाकर देखा तो सामने सायरा कार में बैठी दूर जाती दिखाई दी। हाथ बढ़ाकर उसे बुलाना चाहा, मगर पीछे से ऐसी जब्त लगी कि वो वहीं जमीन पर ढेर हो गया और आंखें खुली थीं और सायरा को अपने से दूर जाता देख रही थी। समीर, उसकी दफतन आंख खुल गई। जिस्म पसीने से शराबोर था। उसने अपनी पेशानी से पसीना पोंछा और गहरे सांस लेते हुए उठ खड़ी हुई। वलीद की शादी को पूरे 4 साल बीत चुके थे। आज ही के दिन समीर की मौत हुई थी और तब से आज तक कोई ऐसी रात नहीं गुजरी थी जब उसने समीर को ख्वाब में मरते हुए न देखा हो। हर रात वो उन आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखती थी, मगर तस्लीम करने से इनकारी थी। उसकी मोहब्बत उसका शौहर वलीद था, जो हर पल उसके साथ था। आज वो उसके लिए खास तोहफा लाने जा रहा था। बस वलीद आते ही होंगे। वो तैयार होने के लिए वॉशरूम में गई और 10 मिनट के बाद एक सुर्ख रंग की साड़ी पहने वापस आई थी। ये साड़ी सुबह वलीद ने ही उसे पहनने को कहा था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बाल ठीक कर रही थी। उसे अपने पीछे किसी के होने का शुबा हुआ। वो पलटी, मगर वहां कोई न था। उसने वहम समझकर अपने ख्याल को झटक दिया और दोबारा कंघा करने लगी। उसे एक बार फिर आईने में कोई छवि दिखाई दी। वो बुरी तरह घबराई और पलटकर दबे दबे अल्फाज में कहने लगी, कौन है वहां? वलीद, आप हो क्या? उसने कंघा ड्रेसिंग टेबल पर रखा और धीमे कदमों से आगे बढ़ी और सामने पर्दों को लहराता हुआ पाया। उसने खौफ दबाते हुए पर्दे हटाए, मगर वहां कोई ना था। उसकी जान में जान आ गई। लगता है मेरा वहम था। उसने गहरा सांस लिया, फिर पलटी तो खौफ के मारे पीछे की जानिब उछल पड़ी। वहां वलीद खड़ा था। अचानक उसे अपने सामने देखकर वो बुरी तरह चौंकी थी। वलीद, वो बुरी तरह चीखी थी। हाँ मैं। क्यों, किसी और को गुमान कर रही थी क्या? उसने हंसते हुए रोमानवी अंदाज में कहा था। नहीं 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 तो, उसने हकलाते हुए तरदीद की थी। लेकिन डर तो ऐसे गई थी जैसे कोई भूत आ खड़ा हुआ हो।
इस बार वो संजीदा लहजे में कोया हुआ था। वो मुस्कुराती और दोबारा ड्रेसिंग टेबल की तरफ चल दी। आपके होते हुए मुझे किसी भूत वगैरह से डरने की जरूरत नहीं है, उसने पुरमुतमईन लहजे में कहा था। इतना यकीन है मुझ पर? उसका अंदाज जो मायने था और धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ा। अपने हाथों में एक बारीक सी डोरी को लपेटने लगा था। खुद से भी ज्यादा वो आईने में देख रही थी। तो आज इस यकीन को भी तोड़ देता हूं। बस इतना कहना था कि उसने डोरी को सायरा के गले में लपेट दिया और उसे बुरी तरह कसने लगा। सायरा इस हमले के लिए कतन तैयार न थी और उखड़ती सांसों के साथ अपनी बका के लिए हाथ पांव मारने लगी। सवाल पूछने का वक्त नहीं था और न ही कोई जुमला जबान से अदा हो सकता था। सांस लेना भी दुश्वार हो चुका था। डोरी इतनी बारीक थी मगर मजबूत थी कि उसके गले की रगों को भी चीर सकती थी। बहुत बार मेरे हमलों से बच गई तुम, मगर आज नहीं, आज तुम्हें मरना होगा, वो जबड़े भींचे कह रहा था। एक जुनून उसके सर पर सवार था। उसने वलीद के चुंगल से निकलना चाहा मगर नाकाम रही। अब उसे अपना आखिरी वक्त मालूम हुआ था कि एक आवाज समाज से टकराई थी। छोड़ दो सहरा को। आवाज शनासा थी। वलीद इस आवाज को सुनकर बुरी तरह चौंका था, क्योंकि घर में दाखिल होने से पहले तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए थे। फिर यह आवाज। वो पलटा तो एक बहुत बड़ा धचका लगा। सामने समीर उसी तूफानी रात वाले लिबास में खड़ा था। समीर! वलीद की जुबान से जारी हुआ तो सायरा भी खांसते हुए पलटी। वहां वाकई समीर था। आंखें हकीकत को तस्लीम करने से कासिर थीं। तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे, ये कहते ही समीर की आंखों से अजीब रोशनी निकली थी और वलीद उस रोशनी की ताबनाकी को बर्दाश्त न कर सका और वहीं ढेर हो गया। सायरा ये सब कुछ समझने से कासिर थी। समीर, तुम जिंदा हो? वो हकलाते हुए कह रही थी और वलीद को यूं मरता हुआ देखकर उसका दिल दहल चुका था। मगर जो उसने किया था उसके बाद कोई जज्बा हमदर्दी के लिए ना था। आशिकी मरती नहीं है सायरा। मेरा जिस्म तो उस रात फना हो गया, मगर मेरी आशिकी तुम्हारे साथ हमेशा रही थी और तुम्हें इस शख्स के फरेब से बचाती रही। बस इतना कहना था कि वो अक्स आंखों से ओझल हो गया। सायरा की आंखों में आंसू थे और हालात को समझने से कासिर दिखाई दे रहे थे। हालात उसकी समझ में नहीं आ रहे थे। तभी उसका दिमाग चकराया और एक एक बात समझ में आने लगी। उस रात वलीद उसे बचाने नहीं बल्कि ये देखने आया था कि सायरा मरी है या नहीं, मगर समीर ने वक्त पर आकर सायरा पर आई मौत को अपने सर ले लिया। शादी के बाद जो घर में आग लगी थी उस वक्त भी वलीद वहां मौजूद था, मगर उसने उसे बचाने की कोशिश ना की। मगर समीर की आशिकी ने बचने की राहें हमवार की। किचन के अकब में हमेशा से बंद खिड़की आज गैर मामूली अंदाज में खुद ब खुद खुली हुई थी। सीढ़ियों पर किसी ने तेल फेंक दिया था और कुछ देर पहले वहां से वलीद का गुजर ही हुआ था, मगर वो फिसला नहीं। और जैसे ही सायरा ने अपना पहला कदम रखा तो उसका पांव फिसल गया, मगर किसी ने इस अंदाज में उसे पकड़ा था कि उसे महसूस ना हुआ। उसका दुपट्टा बुरी तरह सीढ़ी के साथ जंगले में फंस गया और वो मुंह के बल गिरने से बच गई। उस दिन भी वो अपनी ड्राइविंग सीट की बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वलीद उसे जल्दी करने को कह रहा था, तभी उसका सारा ध्यान बेल्ट की तरफ था। गैर इरादी तौर पर उसका सर आगे की जानिब झुक गया, जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। इससे पहले कि वो वापस अपना चेहरा उठाती, एक फायर की आवाज सुनाई थी। आज इन तमाम राजों से पर्दाफाश हो चुका था। उसका दिल फूट फूट कर रोने को चाह रहा था। वलीद की लाश सामने थी, मगर ये आंसू उसके लिए नहीं थे, बल्कि उस आशिक के लिए थे जो मरने के बाद भी अपनी आशिकी निभाता रहा।
وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور اپنی قسمت کو کوسنے لگی کہ کیوں اس نے محبت جیسی نعمت کی توہین کی تھی، کیوں سمیر کی عاشقی کو برا جانا، حالانکہ وہ تو خالصتاً اسے چاہتا تھا، تبھی تو ہر لمحہ عاشقی نبھاتا